Good morning, everybody. We welcome you to the second Sunday of the month of July. आप सभी को इस महीने के दूसरे रविवार में स्वागत है। We believe that you are doing good and God is taking wonderful care of yours. हम विश्वास करते हैं कि हम सभी लोग प्रभु में जो है आराम से हैं, प्रभु हमारा ख्याल रख रहे हैं। We want to welcome each one of you who are watching us through Facebook हम आपका स्वागत करते हैं जो फेसबुक में देख रहे हैं, or wherever you're watching us. अब जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हो। We pray that God's awesome presence will fill that beautiful place हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जहाँ पर आप हो वहाँ पर आप प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें and may He speak to you and work wonders into your और life. वो आपके जीवन में कार्य करने पाए। Today, आज I want you to open your Bibles with me to First Chronicles हम चाहते हैं कि हम पहले इतिहास की किताब को खोलें, chapter 10. उसका 10वां अध्याय। We'll read a couple of verses from there. हम वहाँ से कुछ आयतों को And पढ़ेंगे let's see what God wants to speak to each one of और us. देखते हैं कि परमेश्वर हम सभी से क्या बात करना चाहते Hallelujah. हैं। हालेलुया। Amen. First Chronicles chapter 10, पहला इतिहास उसका 10वां अध्याय and we will read from verse 10 onwards. और उसके 10वें आयत से हम पढ़ेंगे। They put his armor in the temple of their gods and hung up his body in the temple of Dagon. When all the inhabitants of Gilead heard of everything the Philistines had done to Saul, all the valiant men went and took the bodies of Saul and his sons and brought them to Jabesh. Then they buried their bones under the great tree of Jabesh, and they fasted 7 days. Now let's focus from verse 13 onwards. Saul died because he was unfaithful to the Lord. He did not keep the word of the Lord and even consulted a medium for guidance. And he did not inquire of the Lord. So the Lord put him to death and turned the kingdom over to David the son of Jesse. आमीन। मैं 10वें आयत से पढ़ रही हूँ। तब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को दगोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या-क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्र के शवों को उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास किया। यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्ध करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यीशु के पुत्र दाऊद को दे दिया। Also, let's go to chapter 11 आइए हम 11वें अध्याय में भी देखते हैं and read from 7 onwards. उसके 7वें आयत से। David then took up the residence in the fortress, and so it was called the city of David. He built up the city around it, from the supporting terraces to the surrounding wall, while Joab restored the rest of the city. Verse 9. And David became more and more powerful because the Lord Almighty was with him. 7वें आयत से तब दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊद दपूर पड़ा। उसने नगर के चारों ओर अर्थात मीलों से लेकर चारों ओर शहरपना बनवाई और योआब ने शेष नगर के खंडहरों को फिर बसाया। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। Hallelujah. हालेलुया। Let's just pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we come to your throne of grace, पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन की ओर आते and we हैं want to thank you because of good and a और faithful हम आपको God. धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप विश्वास योग्य We परमेश्वर thank you हो। for your word, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके which वचन is के लिए, alive जो जीवित है and which speaks to us और even जो हम today. सभी से बात करता है। आज Father, I want to surrender myself प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में and सौंपते हैं everybody who's hearing your word और right हर now. एक व्यक्ति को जो आपके वचन को सुन रहे And हैं as we tune our ears unto और you, जैसे हम अपने कान को आपकी ओर लगाते हैं, Father, this is a desire पिता, ये हमारी इच्छा है that you will certainly speak to us from your कि word. आप निश्चित रूप में हमसे बात करोगे अपने वचन के द्वारा And may your word work wonders. और आपका वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम करने We पाए। just want to surrender ourselves हम to अपने you. आप को समर्पित करते हैं And we want to see you glorified and और हम exalted. आपको महिमा पाते हुए देखना चाहते We हैं। worship you and हम adore you, आपकी Daddy. आराधना करते हैं, आपको सराहते हैं And in Jesus' name we और यीशु pray. के नाम में हमें प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. So you might have rightly recognized that in the 2 passages that we read, आपने देखा होगा कि 2 पाठांश जो हमने पढ़ा है, there is a story about Saul and his sons, and there's a story about David. उसमें शाऊल की कहानी बताई गई है और दाऊद के बारे में भी।
And we're going to draw some inspirations from here for और ourselves इन दोनों के जीवनों से हम कुछ सीखने वाले हैं अपने जीवन and a lot of में exhortation for ourselves. और अपने लिए बहुत प्रोत्साहित करने वाली बातों को भी And we're going to समझेंगे। learn हम सीखने वाले हैं how can we be actually kind of successful in our life, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, where we can see God working and God moving with जहाँ us. पर हम देखेंगे कैसे परमेश्वर हमारे साथ है। All right. So, as we all know about Saul and David, हम सब जानते हैं शाऊल और दाऊद के बारे में, both chosen by God, दोनों को परमेश्वर ने ही चुना and God placed them और परमेश्वर ने उन्हें एक जगह एक स्थान पर रखा, at a very beautiful place of responsibility. एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की जगह पर परमेश्वर ने उन्हें रखा। But in due course, लेकिन आगे देखते हैं हम how God moved His hand from Saul and placed it upon David. किस तरह परमेश्वर ने शाऊल पर से अपना हाथ उठाकर दाऊद पर रखा And God brings a final conclusion to Saul's life and adds a great promise into David's life. हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में समाप्ति लाई और किस तरह दाऊद को एक नए तौर पर परमेश्वर ने एक शुरुआत दी। So some of you may be wondering, then in that case, was God wrong when He chose Saul? तो शायद हम में से कुछ लोग ये सोचे क्या ये गलत था जो परमेश्वर ने शाऊल को चुना? Was that a blunder? क्या वो एक गलती थी? Was that a mistake? क्या वो एक गलती थी? No. नहीं, It was a perfect choice of God. परमेश्वर का एक सिद्ध चुनाव था शाऊल, Because with God there is no mistake. क्योंकि परमेश्वर से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। But it is we as human beings that can go off the track. हम एक मनुष्य होने के नाते कई बार हम भटक जाते हैं And we can end up doing things that we're not supposed to और हम do. ऐसे चीजों को कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना Which चाहिए ultimately leads us into a lot of destructions. और जो आखिर में नाश की ओर हमें ले जाता है। And the worst destruction is और जो सबसे बड़ा नाश ये है where we see God moving away from our life. जहाँ पर हम परमेश्वर को खुद अपने जीवन से जाते हुए देखते हैं। Because when people asked for a king, क्योंकि जब लोगों ने राजा की मांग की थी, God chose Saul. यहोवा परमेश्वर ने शाऊल को चुना। He was found as a very faithful and a very good man for that लेकिन point. परमेश्वर ने शाऊल को एक बहुत बड़ा विश्वास योग्य व्यक्ति के नाम चुना था। But something went wrong. लेकिन कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ That is where things went out of his hand. और वहाँ पर हम देखते हैं कैसे चीजें शाऊल के हाथों से हट जाती है। You desire to be successful. आपको भी आगे सफल होने का मन है, I desire to be successful. ये मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आगे बढ़ूं। Who doesn't? किसको इच्छा नहीं है? Everybody wants to do good in life. हर एक को अपने जीवन में कुछ अच्छा करना होता You है। call it as ministry, अगर आप सेवकाई देखें, you call it education, आप पढ़ाई लिखाई को देखें, your job, आप अपने नौकरी को देखें, your business, आपका व्यवसाय or even your family setup. या फिर आपका परिवार का सेटअप, In everything, we want to be successful. हर बात में हम सभी लोग आगे बढ़ना चाहते We हैं। all want to see हम progressions. सभी लोग हम जो है आगे की दौड़ में बढ़ना चाहते And हैं that's only possible और ये तभी संभव है when you have God's hand in your life, जब परमेश्वर का हाथ मेरे और आपके जीवन में हो, which leads us triumphantly. जो हमें बहुत विजेता के रूप में आगे बढ़ाता है। So the first portion that we read from 1 Chronicles chapter तो 10, पहला पोर्शन जो हमने पढ़ा था पहले इतिहास की किताब से 10वें अध्याय से, this is talking about how Saul and his son's life come to an end. जो बताता है कि किस तरह शाऊल और उसके पुत्रों का जो है घात हो जाता है। Now, if you read the whole chapter 10, अभी अगर आप पूरे 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, it's in fact a very graphic episode. बहुत एक ग्राफिक एपिसोड लगता है। There's a lot of cruelty, a lot of action that is happening over हम there. देखते हैं कि अंतिम समय में शाऊल के जीवन में बहुत एक्शन दिखाई देता है। You know, it goes on to a period where he kills himself. They all die. Even the armor bearer kills himself. हम देखते हैं कि कैसा शाऊल जो है अपने आप को मार देता है, फिर उसके साथ जो उसका सैनिक होता है वो भी अपनी घात कर देता His है। sons are killed. उसके बेटों को मार दिया जाता है। Even that's not all. उतना ही नहीं, The Philistines are so angry. बलिष्ठी लोग इतने क्रोधित थे, They take their carcasses, their bodies, and hang them on the wall, उनकी शवों को लेकर जो है लटका देते हैं। which is surely a sign of disrespect. जो अगर आप देखा जाए तो वो शर्मिंदगी या लज्जित होने का एक चिन्ह माना जाता They है। leave the bodies to the vultures to come and eat. उन शवों को लटका दिया जाता है ताकि जो गीदड़ जैसे पक्षियां आकर उन शवों को खा लें। Which is completely derogatory, ये बहुत निंदादायक बात है। which is bringing an insult to that community, that family, and that individual. उस समाज के लिए निंदा की बात है, उस परिवार के लिए बहुत लज्जित बात है। But when God is addressing, लेकिन जब परमेश्वर इस बात को कहते He हैं, says it is I who killed Saul.
यहाँ पर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर कहते हैं कि मैंने शाऊल के जीवन को समाप्त किया We'll है। surely come to it why God said so. हम जरूर देखें क्यों परमेश्वर ने ऐसे वाक्य को But कहा। we want to see what went wrong in Saul's life. लेकिन आइए देखिए कि शाऊल के जीवन में क्या गलती हुई। And the best part is, और अगर आप देखिए इसमें उत्तम बात ये है, this is the word of God. ये प्रभु का वचन It है is written over there. और यहाँ पे लिखा गया है। It is written very clearly in bold as to what went wrong from Saul's side. सरल रीति में लिखा गया है कि शाऊल की ओर से क्या क्या गलती हुई थी, उन बातों को यहाँ बताया गया है। And very specifically, we see that from verse 13 और onwards. इसे हम देखते हैं 13वीं आयत से। Let's see. देखते हैं In verse 13, 13वां आयत। Saul died because he was unfaithful to the Lord. शाऊल इसलिए मारा गया क्योंकि वो विश्वासघात उसने किया था। That's the first thing that's mentioned. ये पहली बात। And that is described after that. और उसके बाद उसका वर्णन यहाँ किया गया Why है। was he unfaithful? वो क्यों विश्वासघात He did करता? not keep the word of the Lord. उसने यहोवा के वचन को नहीं रखा। Second thing, दूसरी बात, even consulted a medium for guidance. भूत सिद्धि करने वाले से पूछकर सम्मति ली। Thirdly, तीसरा, he did not inquire of the Lord. उसने यहोवा से नहीं पूछा। Now let's try to understand what's going wrong. अब इन बातों को जरा समझते हैं, क्या गलत यहाँ हो रहा है देखते हैं। Saul was a king. शाऊल एक राजा था। You can say the most powerful man in that land at that point. आप ये कह सकते हैं कि उस प्रदेश में उस समय में सबसे बहुत सामर्थी व्यक्ति And in fact, appointed by God. और प्रभु की ओर से चुना हुआ है। And if you use the biblical language very well, you can say he was anointed by God. अगर आप शास्त्र के अनुसार देखें तो वो प्रभु की ओर से एक अभिषिक्त व्यक्ति था। And now he is the king. अब वो एक राजा है। But over here, the word of God describes that Saul died because he was unfaithful to God. लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि शाऊल इसलिए मरा क्योंकि वो परमेश्वर से विश्वासघात उसने किया था। So what do you and I derive from here? तो मैं और आप यहाँ पर क्या समझते हैं? Irrespective of who we are, हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, irrespective of our position, हमारा स्थान कुछ भी क्यों ना हो, irrespective of the kind of power that we have, कोई सामर्थ हमारे हाथ में क्यों ना हो, or what kind of a backup that we have, या फिर हमारा बैकअप कैसे भी क्यों ना हो, if we are unfaithful to God, अगर हम परमेश्वर से विश्वास योग्य नहीं रहते that हैं, itself is enough to see God move away from our तो वो life. काफी है कि हम देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन से निकल जाते हैं। The greatest allegation against Saul, जो सबसे बड़ा नाम जो शाऊल के जीवन में दिया गया था, allegation दोष लगाया गया था, that he was unfaithful to God. वो विश्वास योग्य नहीं था। Can you beat it? क्या आप ये मान सकते हैं? Being a king, एक राजा होने के नाते when he was unfaithful, जब वो विश्वास योग्य नहीं रहा, God couldn't accept it. परमेश्वर ने उसको अपनाया। God had to stand there and bring his vindication. परमेश्वर ने वहां पर अपने स्थान को जता दिया। So that goes, we just can't take things for granted. इसका मतलब ये है कि हम चीजों को ग्रांटेड नहीं See, when you and I choose or desire to see success and good things happen in our जब मैं life, और आप हमारे जीवन में सफलता को देखना चाहते हैं, अच्छाई को देखना we need to चाहते be हैं, very, very, very careful about this तो हमको aspect. अपने जीवन में इस क्षेत्र में बहुत ध्यान देना है। That are we faithful or are we unfaithful to क्या God? हम विश्वास योग्य हैं या फिर हम अविश्वास योग्य हैं? And that answer that we find और जो जवाब हमें मिलता है will surely show us the end result. वो हमें बताएगा कि हम आखिर में क्या हैं। But the verse says Saul died वचन कहता है कि शाऊल मर जाता है because he was unfaithful to God. क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं And रहा। if you read the stories in the back, और अगर आप उसके कथा के पीछे की बातों को अगर समझने की कोशिश करें, the day he turned unfaithful to God, जिस दिन वो अविश्वास योग्य बना, God moved himself away from Saul. परमेश्वर स्वयं अपने आप को शाऊल के जीवन से हटा देते हैं। And Saul continued to be a king for a long time, हम देखते हैं उसके बाद भी शाऊल बहुत समय तक राजा बना रहा, but there was no presence of God. लेकिन प्रभु की उपस्थिति उसके साथ है। And Saul was doing everything in his own strength, और वो सब कुछ अपने ही बलबूते पे in his कर own रहा था। ability, वो अपनी ही क्षमता में in his own thinking. कर रहा था, अपनी ही सोच और समझ में कर रहा था, and that was not that never resulted in success. और उसकी वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। Can I ask you a question? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? Are you trying to do things on your own? क्या आप चीजों को अपनी तरह से करने की कोशिश कर रहे Trying to हैं? take things into your hands? क्या आप चीजों को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर Or रहे trying हैं? to work out your own very plans? या अपनी ही योजनाओं को बनाकर चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं? If the answer is yes, अगर आपका जवाब हाँ it's है, the right time for you to stop. तो मैं आपसे कहता हूँ ये सही समय है कि अपने आप को रोक लें, Because that gives you and me a warning light.
क्योंकि मेरे और आपके लिए ये चेतावनी है that we are going against God and become कि unfaithful to अगर God. हमारा जवाब हाँ है, इसका मतलब ये है कि हम प्रभु की और अविश्वासियों के हैं, हमें फिर से लौटना Now है। let's see what was Saul doing to become अब unfaithful. देखते हैं शाऊल आगे क्या क्या करता है। The first thing written is, पहला बात जो लिखा हुआ he है, said he did not keep the word of God. उसने यहोवा के वचन को नहीं माना। Now for those who know the story, अब जो कहानी को जानते हैं, that when God had given him the battle to go and fight against the Amalekites, जो परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वो अमालेकी लोगों के विरुद्ध में जाकर युद्ध लड़े, there was a very clear instruction from God. एक बहुत सीधा इंस्ट्रक्शन जो है उनको दिया गया The था। instruction was, वो इंस्ट्रक्शन ये था, आदेश ये kill था, everybody. हर एक को मार दो, Don't keep anybody alive. किसी को भी जीवित न रखना। But Bible says, लेकिन बाइबल कहता है, in that battle, उस युद्ध में Saul chose to do what he felt like. शाऊल ने वही किया जो उसे लगा उसे करना He था। did everything that he wanted to उसको do. जो भी करना था उसने वो किया। Every instruction given by God, हर एक आदेश जो परमेश्वर ने दिया था, he just outrightly, valiantly refused and rebelled against it. शाऊल ने उन सारी बातों को लांघ कर जो है नकार कर अपनी इच्छा से वहाँ पे चीजों को That's करने why the की word कोशिश की। says, इसीलिए वचन कहता he did है not keep the word of कि God. उसने प्रभु के वचन को नहीं माना। Now this is where you and I need to keep checking our life. अब यहाँ पर मुझे और आपको अपने जीवन को परखना See, है। you and I receive the word of God in various ways. देखो मैं और आप प्रभु के वचन को बहुत अलग-अलग तरीके से पाते हैं अपने जीवन Most में। often do we read about it, हम से कई लोग जो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं and we receive the insights from here. और वचन से हम उस प्रभु की वाणी को सुनते हैं। There are times when God sends people to you and speaks to you very clearly. कई बार परमेश्वर अपने लोगों को भेजकर जो है आपसे बात करते हैं। There are times when you receive the word very clearly for yourself when you hear the word of God. ऐसे भी होता है कि जब आप किसी और से प्रभु के वचन को सुनते हैं, वो तो प्रभु आपसे बात करते हैं। Maybe you're hearing on the YouTube हो सकता है यूट्यूब से आप सुन or रहे on the हैं, Facebook या फेसबुक से, or in your very own church या फिर आपकी खुद की कलीसिया में, in various ways. अलग-अलग तरीके से। Maybe a Bible portion somebody shared you हो one day. सकता है कि एक छोटा सा शास्त्र का वचन किसी ने आपके साथ बांट लिया हो, Randomly somebody sent a devotion to या you. फिर किसी ने आपको डिवोशन भेज दिया हो, And God is speaking to you loud and और वो clear. आपसे बात कर रहे हैं। But what is your stand on that? लेकिन जब प्रभु आपसे बात करते हैं तो उसको अपनाने के बाद आपका स्टैंड क्या है? Word has come. वचन आ चुका है, We have heard it. हमने सुन लिया है, We've understood it. हमने समझ भी लिया But है, then what do we do about it? लेकिन अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? Do we function according to that instruction? क्या हम जो वचन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसके आधार पर हम जीते हैं, Or do we try to do whatever we still feel या like? फिर हम वो ही करते हैं जो हमें लगता है हमको करना है? What did Saul do? शाऊल ने क्या किया? God spoke clearly. परमेश्वर ने बहुत सरल रीति The में बात entire की, instructions were given. आदेश दिए गए थे, But Saul went out and did whatever he felt लेकिन like. शाऊल ने वही किया जो उसे लगा उसे करना है, That is where things went wrong. और वहीं पे सारी चीजें गलत होने लगती। What do we do? हम क्या करते हैं? How are we doing it? हम कैसे कर रहे हैं? If we are also following exactly what Saul is doing, अगर हम भी वही कर रहे हैं जो शाऊल ने किया, then we too are not keeping the word of God. तो हम भी परमेश्वर के आदेशों को नहीं मानते। You know, generally what happens? आपको पता है आमतौर पर क्या होता है? We go and ask God, God, tell me what do I do? हम प्रभु से पूछते, प्रभु हम क्या करें? What is your plan for my आपकी life? योजना क्या है मेरे जीवन के लिए? But we already have a plan B in our mind. लेकिन उसके पहले ही हमने प्लान बी बना दिया है, And God gives a different plan. और लेकिन वहाँ पर परमेश्वर एक अलग योजना देते And we हैं, hesitate to receive what God says. और हम हिचकिचाते हैं जो प्रभु हमसे कहते हैं करने And we के end लिए। up doing what we have और thought of. आखिर में हम वही करते हैं जो हमें लगता है हमको करना है। That is what it says. Saul didn't keep the word of God. वही इसका मतलब वही है जिस तरह शाऊल ने परमेश्वर के आदेशों को नहीं माना। I pray ये मेरी प्रार्थना है each one of you are hearing me कि today. जो कोई सुन रहे हैं हमको, We will change that very area of our life. हम अपने जीवन के हर क्षेत्र पर परिवर्तन को लाएं, Because no matter what you call and say after that, क्योंकि इसे कोई मतलब नहीं रखता कि उसके बाद आप क्या कहें। but then God will not say that you're doing what He has said. प्रभु कभी ये नहीं कहेंगे कि आप वही प्रभु हमेशा यही कहेंगे कि आपने गलत We किया may है। look a lot spiritual. हम शायद बहुत आत्मिक दिखें, We may try to do everything as if we are being very obedient to हम God. शायद लगे कि हम प्रभु से बहुत आज्ञाकारी हैं,
But when God sees us, लेकिन जब प्रभु हमको देखते हैं, He's seeing us as somebody who's not keeping His word. प्रभु हमको देखते हैं कि हम ऐसे लोग हैं जो प्रभु के वचन का पालन नहीं I करते। pray, my dear brother, my dear ये मेरी sister, प्रार्थना है प्रिय भाई प्रिय बहन, that we will turn away from such actions कि हम ऐसी बातों से अपने आप को दूर रखें and we'll do what God और says. हम उन चीजों को करें जो प्रभु हमसे कहते The हैं। second thing about Saul, दूसरी बात शाऊल के it बारे में says बताती he है, even consulted a medium for guidance. उसने भूत सिद्धि करने वालों से सम्मति ली। Can you imagine? क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं, A man who knew who the true God is, एक व्यक्ति जो एक सच्चे परमेश्वर को जानता है, a man who's been chosen by God and kept at a high position, एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था, जिसको प्रभु ने बहुत ऊंचे ओहदे पे रखा a है, man who was called as anointed. एक ऐसा व्यक्ति जो अभिषिक्त माना जाता But है, when he came to a weak moment, लेकिन जब वो एक दुर्बल समय में आता है, when his insecurities increased to a highest तो level, उसका असुरक्षापन बहुत ऊंचे स्तर पर दिखाई and he was देता है just desperate to do something on the और वो other, बहुत व्याकुल था कुछ ना कुछ करने के instead लिए। of asking the Lord, प्रभु से पूछने के बजाय he went and consulted a medium. वो जाकर जो है भूत सिद्धि करने वालों से जाकर He पूछता went and है। did something that is so much abomination to God. वो ऐसी गलती कर बैठता है जो परमेश्वर के सामने बहुत दुष्ट माना Now, जाता है। those of you know book of Exodus, जो लोग निर्गमन की किताब को जानते when हैं, God gave the 10 commandments, जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया He था, very clearly said, "Thou shalt not worship anybody else apart from me." परमेश्वर का एक आज्ञा ये है कि हम किसी और भगवानों की स्तुति ना लें। He even went out to say, "Don't have any idols, no graven images." प्रभु ने कहा कि हमें किसी भी मूर्तियों को नहीं रखना है, किसी और की आराधना हमें नहीं करनी है। And when the entire scriptures has been very evident and very clear that God hated idolatry, और जब पूरे वचन में हमको पता है कि किस तरह परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं, then how Saul तो शाऊल कैसे could go and consult a lady who practiced witchcraft, एक ऐसे स्त्री के पास जाते हैं जो जादू तो ना करती है, who is doing something with the spirits and the dead spirits, evil spirits, sorry. जो दुष्ट आत्माओं के साथ काम करती है, How could he approach that? वो कैसे उसके पास And जा this is सकता what है? is standing against him. और यही बात उसके विरुद्ध खड़े है And that is what made God stand. और उसी के वजह से परमेश्वर शाऊल के विरुद्ध खड़ा होता This है। is what you need to be careful और about. इसी बात का ध्यान मुझे और आपको भी देना In है। times of desperation, जब हम व्याकुल हो जाते or हैं when things become hard, or you become so या insecure, फिर जब चीजें हमारे लिए मुश्किल होने लगती हैं, are you and I resorting to things that is not accepted by God? क्या हम ऐसी चीजों को कर बैठते हैं जिसे प्रभु पसंद नहीं करते? So today you may not be into witchcraft, देखिए हो सकता है कि आज आप जादू टोना नहीं करते हैं, but you may be doing things that is certainly an abomination to God. लेकिन ये हो सकता है कि आप ऐसी बातों को करते हो जो प्रभु की नजर में बहुत खराब साबित है। For that matter, take about all the evil prayers that we make. उसके लिए जरा ध्यान दे, अगर उसकी हम अगर उदाहरण दे तो किस तरह दुष्टता के प्रार्थनाओं को कभी हम करते हैं, Or we go and practice corruptions. हम जो है भ्रष्ट कामों को करते हैं, We take bribes. हम रिश्वत लेते हैं, Or we stand to do wrong activities. हम गलत गलत कामों को करते हैं, Or you know, maybe cheat or deceptions or whatever you call it या फिर हम as. किसी को धोखा देते हैं। ये सब हम करते हैं। There can be so many things that we can resort to ऐसे कई to चीज़ों- help ourselves in our moments of ऐसी कई desperation. चीजों को शायद हम इसकी सहायता लेते होंगे ताकि हम अपने उस गड़बड़ी से बाहर निकल पाए, But this is not what God likes. लेकिन प्रभु इन चीजों को पसंद नहीं करते। To a moment that even Saul never thought of it, but my God, appreciate this. उस क्षण तक जहाँ पर शाऊल ने एक बार भी सोचा नहीं कि क्या मेरा परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। Many times you and I do things like कई this. बार मैं और आप ऐसे कामों को करते हैं, We end up doing things which God hates. हम ऐसे कामों को कर बैठते हैं जिसे प्रभु बहुत नफरत करते हैं, And this is one such thing और ये उनमें से एक है which God hated from जो Saul's side. परमेश्वर ने बहुत परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद He नहीं was है जो so शाऊल ने desperate किया। to know whether he will win the battle. शाऊल बहुत व्याकुल था जानने के लिए कि क्या वो युद्ध को He was जीतेगा just कि नहीं। desperate to know what will happen. वो बहुत व्याकुल था जानने के लिए कि क्या होगा आगे। And he went to a lady who practiced witchcraft. और वो जादू टोना करने वाली स्त्री के पास चला My जाता है। friend. मेरे दोस्तों, What are you trying to do? हम क्या करने की कोशिश कर रहे Have हैं? you put your hands into something that is evil? क्या हमने अपने हाथों को उन चीजों में डाला है जिसमें जो शत्रु का है?
Or have you put your minds into something that is devilish? या फिर हमने अपने मन को उन चीजों में लगाया है जो शत्रु की ओर से Or है। probably as a family, are you practicing something that is an abomination to God? हो सकता है एक परिवार होने के नाते क्या आप ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं जिससे परमेश्वर बहुत नफरत करते हैं। Or या many times you and I entertain certain things into our home which is highly detestable to God. कई बार हम अपने घरों में उन चीजों को होने देते हैं जिससे प्रभु बहुत नफरत करते हैं। I'll give you a simple example. मैं आपको एक सादा एक उदाहरण देना You know, there are चाहता हूँ। many times when you and I, out of desperation, we open our newspapers and go to read horoscopes. कई बार हम जो अपनी व्याकुलता में अखबारों को खोलकर जो है हॉरोस्कोप्स देखते हैं। Or I'm sure that many of you are there who very what do you call very popular with Linda Goodman book. या फिर आप में से कुछ लोग हों कि जो इस किताब के साथ बहुत जुड़े हों। I don't know if the name I'm getting about the author is correct or not. मुझे पता नहीं कि जो नाम मैंने कहा है लेखक के बारे में क्या वो सही है। But I have read that book long back. लेकिन मैंने उस किताब को पढ़ा है बहुत साल She पहले। talks a lot about the sun signs वो बहुत तारों के बारे में जो है बात करती है and describes the personality and how to do and what to do. और उसके आधार पर लोगों के व्यक्तित्व को बताती है और कैसे क्या करना चाहिए बताते हैं। We don't know, but what do you call it? Subconsciously, you and I end up doing many such और practices. सबकॉन्शियसली हम ऐसे कामों को करने लगते हैं। We invite wrong people into our home to do wrong हम things. गलत लोगों को अपने घर में प्रवेश दे देते हैं जो गलत कामों को करते हैं। Be very careful. हमें ध्यान देना है। Saul did one such mistake शाऊल ने ऐसी गलती की थी। by approaching a wrong personality. उसने एक गलत व्यक्ति के पास वो गया था आगे की बातों को जानने के लिए। First thing, पहली बात, Saul didn't do what God said. शाऊल ने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। Or to put better, he disobeyed God's instruction. या फिर अच्छी तरह से और कहे तो उसने परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया। Second thing, दूसरी बात, when he was at the brink of a situation, जब वो एक समस्या में था he went to a witchcraft. तो वो जो एक जादू टोना वाली के पास He जाता put his है, hand into a wrong thing उसने अपने हाथों को गलत कामों में डाल to दिया see something better happening. कुछ अच्छा देखने के लिए। That was the second wrong ये that he दूसरी did. गलत बात थी शाऊल की ओर से। A third thing that is very visible over और here तीसरी बात जो यहाँ पर दिखाई देती है that happened as a result of the second thing जो दूसरे कार्य का परिणाम था is of verse 14. वो 14वीं आयत में है। It says, and he did not inquire of the Lord. उसने यहोवा से नहीं पूछा। If you know the entire duration of Saul as a king, अगर आप देखें जितने साल तक शाऊल राजा था, there have been multiple instances when he tries to ask the Lord. ऐसा कई समय आया जहाँ पर उसने परमेश्वर से पूछा। Those of you know of Urim and Thummim, आप में से जो जानते हैं उरिम और तुमिम के बारे में, he will go out to get that to inquire, वो उन चीजों को लाने कहता था ताकि वो प्रभु की ओर से जाने कि to know उसे what क्या is the करना will है, and the plan of God. ताकि वो समझे कि प्रभु की इच्छा क्या है। But before even that is checked and a result is brought back, लेकिन उससे लाने से पहले उसका परिणाम जानने से he पहले would leave that place to execute what he thinks is right. शाऊल जो है अपनी ही चीजों को अपनी ही योजना से करने लगा। That is why it is written in verse 14. इसलिए यहाँ पर 14वीं आयत में लिखा He है never inquired of the Lord. कि उसने यहोवा से नहीं You know पूछा। what's the meaning of the word inquire? आपको पता है इसका मतलब क्या है? नहीं पूछना। Nahi, he never asked. उसे कभी पूछा नहीं। He never sought the face of the उसने Lord. कभी प्रभु के मुख को खोजा He नहीं। never tried to hear the heartbeat of God. उसने प्रभु के बातों को सुनने की समझने की कोशिश He नहीं की। tried to do things his way. उसने अपने ही तरीके से चीजों को करने की And you know what happens in due course? और आपको पता है आगे जाके क्या In होगा। between, he tries to ask God, ऐसा भी हुआ था कि जब वो एक बार प्रभु से पूछता है, but God never spoke to him anything. प्रभु ने उससे बात नहीं की। Because in the past, क्योंकि बीते दिनों में he never asked God. उसने कभी यहोवा से पूछा नहीं। Are you doing the same? क्या हम भी वही कर रहे हैं? Are there things in our life we never ask God? क्या ऐसी चीजें हैं हमारी We just जीवन end जिसके up doing बारे में things हम spontaneously and यहोवा से randomly? नहीं पूछते हैं, हमको जैसा मन चाहे हम वैसा करते हैं। That's wrong. गलत है, Because God, He is the King and the ruler of our life. क्योंकि परमेश्वर हमारे राजा है। And He's the, what do you say? He's the perfect planner. वो सिद्ध योजना बनाने He knows वाला है। everything good and perfect. वो सभी अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को And जानते when हैं। He knows everything good and He knows everything that is और perfect, जब वो जानते हैं, it is rightful for us to go and ask Him, God, tell me, Daddy, what should I do? सही कदम ये होगा जब हम जाके यहोवा से पूछे, प्रभु हमें बताएं कि हम क्या करें। Especially we who are the New Testament church. विशेष करके जब हम नए नियम की कलीसिया हैं, When we are called as sons and daughters through Jesus जब Christ, हम मसीह के द्वारा बेटा या बेटी कहलाए जाते हैं, we should take that position and ask Him, Daddy, tell me, what should I do about हमने my उस life? स्थान को ग्रहण करते हुए प्रभु से पूछना जरूरी है कि प्रभु आप हमें बताएं कि हम क्या करें।
I pray मेरी प्रार्थना है that you and I will make this as a practice. कि मैं और आप इसे एक प्रैक्टिस That we बनाएं will go and ask God even for the smallest things. कि हम प्रभु के पास जाकर पूछे छोटी सी बातों के For लिए। example, Daddy, should I go there? उदाहरण के तौर पर क्या प्रभु मैं वहां जाऊं? Should I buy that thing? क्या मुझे वो लेना Should I चाहिए? spend that money? क्या मुझे ये खर्च करना I'm चाहिए? telling you guys, it's worthwhile to ask God for everything मैं आपसे कहता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु से पूछें हर बात के because लिए, He knows everything. क्योंकि प्रभु जानते हैं, Because you don't know what's going to happen tomorrow, क्योंकि आप नहीं जानते कि कल क्या होगा, but God knows everything. लेकिन परमेश्वर जानते हैं। So Saul never followed the instructions from God. तो पहली बात, शाऊल ने प्रभु के आदेशों को नहीं माना। Secondly, he went and did something that is an abomination to God. दूसरा, उसने ऐसे कामों को किया जो प्रभु के सामने दुष्ट पाया जाता And था। thirdly, और तीसरा, he never asked God उसने instructions. यहोवा की बातों को नहीं माना, He यहोवा never से पूछा he नहीं। never waited upon the Lord. उसने कभी भी यहोवा की ओर ताक नहीं लगाया। That's why verse 14 says, इसके 14वां आयत कहता so है, the Lord put him to death तो यहोवा ने जो है उसे मार कर and turned the kingdom over to David the son of Jesse. और राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। But if you read chapter 10, अगर आप 10वें अध्याय को पढ़ते it said that the Philistines chased and Saul took his own life. हम देखते हैं कि कुछ आयतों के पहले लिखा गया कि फलिश्ती लोग जो है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन शाऊल अपने आप को मार देता है। And God says he took his life. लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में लिखा गया कि परमेश्वर ने शाऊल को मार दिया। What does that actually mean? इसका मतलब क्या है? God put an end to a chapter called as Saul परमेश्वर ने शाऊल का एक अध्याय जो था वो बंद किया and took the kingship from him and placed it onto David. और उस राज्य पद को जो है वो दाऊद के जीवन में जोड़ दिया। God chose Saul, परमेश्वर ने शाऊल को चुना था, but Saul went onto a wrong direction. लेकिन शाऊल ने जो है गलत रास्ते को अपनाया। And when Saul went onto a wrong direction, और जब शाऊल गलत रास्ते की ओर जाता है, God took that from him and placed onto David. परमेश्वर ने उस राजपद को उससे हटाकर जो है दाऊद के जीवन में जोड़ दिया। Hallelujah. हालेलुया। Now let's see about David. अब दाऊद के बारे में That's a देखते हैं। very interesting verse written in chapter 11. 11वें अध्याय में बहुत सुंदर बात Verse लिखी है। 9. 9वें आयत में It says David became more and more powerful दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई because the Lord Almighty was with him. क्योंकि सेनाओं का यहोवा उसके संग था। Hallelujah. हालेलुया। When Saul's life began here, जब शाऊल का जीवन बहुत ऊंचाई पर शुरू हुआ था, it ended on a very low note. लेकिन जब वो समाप्त हुआ तो वो पूरी तरह गिरा हुआ So था। if you ask me, Saul's life was not on a progression, तो अगर आप मुझसे पूछे तो शाऊल का जीवन सफलता की ओर it was a था, downward spiral. लेकिन वो ऊपर से नीचे की ओर गिरने की ओर पे था। But how was David's life? लेकिन दाऊद का जीवन कैसे था? Began on a very low note. वो बहुत नीचे स्तर से उसकी In fact, for शुरुआत many हुई। years he was running. कई अगर आप देखें बहुत सालों तक वो सिर्फ भागता ही He रहा। was running because Saul was trying to kill him. वो भाग ही रहा था क्योंकि शाऊल उसका घात करना चाहता था। But at the appointed time, he became the actual king. लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कैसे वो एक क्षेत्र में राजा बन जाता And है। as this verse says, he kept climbing. और जैसे ये वचन में लिखा गया है, ये बताता है कि दाऊद जो है नीचे से और के धीरे-धीरे वो ऊपर की ओर He बढ़ने became a लगा। successful king. वो एक सफलपूर्वक राजा बना। That is a stepping stone. और ये सफलता का Because why? पद है। क्यों? Because David was always obedient to God, always faithful to God, and connected with दाऊद God. हमेशा परमेश्वर के विश्वास योग्य था और प्रभु से वो जुड़ा हुआ था। He never missed hearing God. उसने प्रभु के आवाज को सुनने में चुका नहीं। He was very quick to correct his वो mistakes. अपनी गलतियों को जल्द ही सुधार लेता। Even when he had the issue with Bathsheba, जब भी उस बर्शबा के साथ में जो उसके साथ उसने जो गलत काम किया था, when God intervened in a scenario, he corrected his life, got up and went परमेश्वर ahead ने अपने beautifully. दास को भेजा उसके जीवन में, उसने अपनी गलती को सुधारा और वो आगे बढ़ा अपने He जीवन was में। always quick to go back to God. वो जल्द ही परमेश्वर की ओर दौड़ा आता था। He never allowed the gap between him and God to उसने increase. कभी भी परमेश्वर उसके बीच में जो है उस अंतर को रहने नहीं दिया। He was always close to God. वो प्रभु के बहुत निकट था। That was something big difference between him and Saul. दाऊद और शाऊल में ये सबसे बड़ी बात थी, That's अलग why बात थी। David was successful. इसलिए दाऊद सफलपूर्वक रहा। I pray today, आज ये मेरी प्रार्थना है when you and I hear this कि word, जब मैं और आप इस वचन को सुनते हैं, we will
we would try to correct our lives, keeping Saul as an example, हम अपने जीवन को सही करें, शाऊल को एक उदाहरण की ओर तरह लें and we look up to David and be inspired to live a और beautiful life. दाऊद की तरफ बनने की हम कोशिश करें। When you live a life that is walked the way David walked, जिस तरह दाऊद ने अपने जीवन को जिया, अगर हम उस तरह चलते हैं, this verse also has to come to true in our life. तो यही वचन जो परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा है, हमारे जीवन में भी It says David became more and more powerful. देखिए यहाँ पे लिखा है कि दाऊद जो है वो अधिक बढ़ता गया। Why he became powerful? क्यों वो बढ़ता गया? The secret is because the Almighty God was with वो him. इसलिए बढ़ता गया क्योंकि सेनाओं का यहोवा उसके Hallelujah. साथ था। You know, I've been teaching the church. As a church, we've been learning the book of Revelation. कलीसिया होने के नाते हम प्रकाशित वाक्य को सीख रहे हैं। And the book of Revelation has a very beautiful word called Almighty to describe God. और प्रकाशित वाक्य की किताब में महान परमेश्वर इस शब्द का इस्तेमाल किया Quite है। often used in that book, कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया which गया in है, Greek means Pantocrator, जिसमें यूनानी भाषा में पैंटोक्रेटा कहते which हैं। means God is holding it and He's in control. इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने चीजों को अपने हाथों में रखा हुआ है और वो नियंत्रण में है। Which means He's the one who dictates and He takes complete charge. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ही चीजों को अपने हाथों में लिए हुए Now, है। if such a God अब ऐसा परमेश्वर is with you and me, अगर मेरे और आपके साथ है, then everything has to fall in perfect तो सब places. कुछ सही जगह पे पाया जाना बहुत जरूरी Why है। was David successful? दाऊद क्यों सफल रहा? Because this amazing God was with him. क्योंकि ये महान परमेश्वर उसके संग था। Why was David successful? दाऊद क्यों सफल पूर्वक Because रहा? this God who controlled everything was with him. क्योंकि ये परमेश्वर जिसने हर चीज का नियंत्रण लिया था, Why उसके was साथ David था। successful? दाऊद क्यों सफल था? Because this God who held everything क्योंकि ये परमेश्वर जिसने सब कुछ अपने हाथों में रखा हुआ was है, with David. वो दाऊद के साथ पाया गया। Then what could come against David's तो success? दाऊद की सफलता के आड़े क्या आ सकती है? You don't need to run behind any success mantra. देखिए, आपको किसी भी सक्सेस मंत्र के पीछे भागने की You don't जरूरत need to नहीं है। spend money behind any book that gives steps to success. आपको किसी भी किताबों में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है जो सफलता के लिए 10 पद के बारे में सिखाते Have हैं। bear this one thing in mind. एक बात अपने मन में रखिएगा, God should be with you. परमेश्वर आपके संग होना And जरूरी if है। God is with you, और अगर यहोवा आपके संग है, success has to come into तो your life. सफलता आपके जीवन में होना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Remember one thing, people. एक बात याद रखिएगा, Both Saul and David were शाऊल chosen by और God. दाऊद दोनों को परमेश्वर ने ही चुना था। Both chosen as king. दोनों को राजा के नाय परमेश्वर ने Of चुना। whom? किसका? King of God's people प्रभु के लोगों का राजा and king of God's land. और प्रभु का प्रिय देश का राजा। But one man came spiraling down, लेकिन एक राजा ऊपर से नीचे गिर जाता है and one man climbed up and climbed powerfully. और एक दूसरा राजा जो है वो बहुत अधिक गति में बढ़ने लगता है। Which example are you following? आज हम किसको अपना उदाहरण लेकर आगे बढ़ना Which चाहेंगे? lifestyle are you emulating? आज हम किस प्रकार के जीवन शैली को लेते हुए आगे बढ़ेंगे? If you are following footsteps of Saul, अगर आप शाऊल के पद चिन्हों पर चलना चाहते no matter हैं, how much you justify it, आप कितना भी उसको जस्टिफाई क्यों ना करें, you will never see God आप working. प्रभु को अपने जीवन में काम करते हुए नहीं देख And I पाएंगे। pray that will not be the case और in मैं our प्रार्थना lives. करता In हूँ कि Jesus' ये name. आपका भाग ना हो यीशु के नाम And में। I pray that each one of us हम में से हर एक will move away from the patterns of Saul and follow patterns of David. हम शाऊल के जीवन शैली को ना अपनाते हुए दाऊद के जीवन शैली को हम अपनाने वाले बन And when जाएं। you do that, और जब हम ये करते हैं, the Almighty God will be with you. महान परमेश्वर हमारे साथ And रहेंगे। when the Almighty God is with you, और जब महान परमेश्वर हमारे साथ हैं, everything is beautiful and perfect. सब कुछ सुंदर और सिद्ध दिखेगा। Hallelujah. हालेलुया। Why don't we close our eyes and pray? आइए हम अपनी आंखों को मूंद दें और प्रार्थना करते Can we हैं। all just close our eyes, surrender ourselves to this wonderful God? अपनी आंखों को मूंद कर अपने आप को इस यहोवा परमेश्वर की ओर समर्पित करें। Oh, this God who chose Saul, this God who chose David. ये परमेश्वर जिसने दाऊद को चुना, जिसने शाऊल को चुना, He is still powerful to work into our lives. आज वो सामर्थ्य है मेरे और आपके If जीवन में only कार्य we can करने make का। corrections. अगर हम अपने जीवन को सही If करते only हैं, we can make appropriate अगर choices. हम अपने जीवन में सही चुनाव को करते हैं, Think properly and do things properly. चीजों को सही मायने में निर्णय लेते हैं, Can we just pray?
आइए हम प्रार्थना करें। Father, we come to your throne of प्रभु, grace. हम आपके अनुग्रह के सिंहासन We पर आए thank you हैं। because you are good हम and आपको wonderful. धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अच्छे और भले You are a परमेश्वर हैं। faithful God. आप विश्वासियों के You're the God परमेश्वर who हो। brings everything good into our आप life. एक ऐसे परमेश्वर हो जो हमारे जीवन में अच्छी बातों को करते And you're a हैं God of complete control. और आप पूरे चीजों का नियंत्रण अपने हाथों में And we लेते know हैं। one thing, Daddy. हम ये बात जानते हैं प्रभु If जी we look up to you, कि अगर हम आपकी ओर देखें, follow you faithfully, अगर हम विश्वास योग्यता में and आपको have you in आपका our अनुसरण life, करें और आपको अपने जीवन में we'll रखें, surely see success, तो हम Daddy. निश्चित रूप में प्रभु की सफलता को देख Father, पाएंगे। we give each one of us into your पिता, hands. हम अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों If में we are सौंपते हैं। following Saul's example, पिता, अगर हम शाऊल के उदाहरण को लेते हुए give us the जीएं, grace to correct our हमें life, वो अनुग्रह दे कि हम अपने जीवन को that सही we'll करें, retrace our steps back to कि you हम अपने कदमों को फिर से आपकी ओर मोड़ and पाएं follow you faithfully और विश्वास योग्यता के साथ and आपका have you अनुसरण in our करें life. और आपको अपने जीवन में ग्रहण करते हुए। Father, this is a desire पिता, ये हमारी इच्छा है that you will be in our life. कि आप हमारे जीवन में पाए I want जाएं। to pray for each one of my friends who are watching me right हर now. एक जो देख रहे हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना Father, करते हैं, as they're hearing your word, जिससे वो आपकी वाणी को सुनते I हैं। pray that each one of them will be drawn closer to हम you. प्रार्थना करते हैं उनमें से हर एक व्यक्ति जो है वो आपके निकट पाया And may जाए your awesome presence और be in आपकी your life. उपस्थिति उनके साथ रहे। Because we know प्रभु, हम जानते as हैं long as you're there in our जब life, तक आप हमारे संग हो everything has to fall in place तो and has to सब be कुछ सही beautiful. जगह पर पाया जाना जरूरी है। Father, we surrender to पिता, हम you. समर्पित करते हैं, Give us the grace हमें वो अनुग्रह दें that we will be faithful to कि you. हम विश्वास योग्य रहे आपकी ओर। Father, forgive us wherever we've gone wrong, प्रभु, जहाँ कहीं हम गलत हुए हमें क्षमा कर, but help us to come back to you. हमारी सहायता करके Holy हम आपकी ओर फिर से आए। Holy पवित्र Spirit, आत्मा, you guide us and lead आप us. हमारा मार्गदर्शन करें, Convict us today आप हमसे बात and करें give us the grace to correct. और हमें अनुग्रह दें कि हम अपने जीवन We को give सही you करते हुए आगे all बढ़ the पाएं। glory, honor, हम and सारा praise. महिमा आदर स्तुति प्रशंसा आपको We देते हैं, worship you. आपके आराधना and करते adore हैं, you. आपको सराहते हैं, Be exalted, be आपका magnified. नाम ऊंचा उठाते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम में हमें प्रार्थना करते हैं। Amen, आमीन, amen, and आमीन। amen. Want to bless each one of you watching us through Facebook. जो फेसबुक से देख रहे हैं, हम आप सभी को आशीषित We करते हैं। bless you today. हम आपको आशीषित करते हैं। Wherever you are, आप जहाँ कहीं हैं, we pray that this wonderful God will take charge and control in every area of your life. हम प्रार्थना करते हैं कि महान परमेश्वर आपके जीवन का हर एक क्षेत्र का नियंत्रण May करें। you experience God's goodness and wonders. आप प्रभु की अच्छाई का अनुभव कर पाए, प्रभु की अच्छाई का आप पूरी तरह आनंद ले पाए। Feel free to share your prayer points with us. अपने प्रार्थना विषय को हमारे साथ जरूर We would बांटें। love to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करना चाहेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष We'll दे। meet you again. अगली बार Have a fabulous एक weekend. अच्छा सप्ताह आप आगे पाएं। Hallelujah.